Okay, let's begin. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? Yes. Okay, please, everyone, open your cameras so we can start. All of you are requested to open up your cameras so we can start the workshop. Okay, so let's begin. Assalamu alaikum. I'm Simran Salim and I'll be taking your today's workshop. तो मैं आपको Python के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी and किसी ने कभी Python पे काम किया है पहले? No. Anybody? ओके सो मैं आपको बताती हूँ पाइथन के बारे में थोड़ा सा सो पाइथन इज बेसिकली it's the fourth most popular programming language and you can see the increase of the popularity of Python using Google Trends. Okay, so all the most popular websites websites usually use Python and HTML together. So Python is usually used in data science, which is a field of computer, and it's used in machine learning, artificial intelligence, robotics, and computer vision, and even it can be used to create some games and apps. So any questions up till now? Okay, so let's move towards the contents that we are going to cover today. Before making the project, like during making the project, we will be learning about these topics over here, which are variables, integers, input and print statement, operators, and conditional statements. But before that, I'm going to show you how you are going to work with the code of Python and where are going to use it. So you do not need to install any software. You're going to go to Chrome and search Google Colab. After searching, there is a website over here. I'm copying its link and pasting it to the in the chat box so you can. So there is a link in your chat box. आप उस पे जाके और उस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ गूगल कोलैब पे आ जाएंगे. Everyone can let me know जब वो यहाँ तक कर ले. They can give a thumbs up, or maybe they can write in the chat if they're done.
Okay, is everybody done till here? Should we move ahead? Okay. L- so coming to this website, you need to go to the sign in option at the right corner. After clicking in sign in, you need to write your email and the password that you're going to use on the Google Colab. So From where we have to sign in? okay, when you sign in and you will see this screen coming as the window. Over here, there is an option of new notebook. You need to click on that and it will open a new file. Any questions still here? मैं उसको मैसेज करी I can't hear you. And is my voice clear now? Okay, so now before starting with Python, we are going to we are going to see some features of Google Colab. So for right over here, we are going to write the code, and from this button, we are going to run the code. Or from this button, we are going to insert a code cell, which is like this is a line, for example, and I'm done with writing code here. I need to make a next tab. So I'm going to write, we can write, we can make either a new file or we can click on plus code and create a new line to work on our next line. So from this file option, you can create a new notebook or you can open a notebook that you have worked earlier. Over here, you can see the untitled 13.ipynb. So we can rename this option. मैं इसको नाम दे रही हूँ कैलकुलेटर का, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर का नाम हम यहाँ दे देते हैं और हम यहाँ आगे लगाएंगे .ipynb. दिस इज ये जो है एक एक्सटेंशन होती है, जैसे वर्ड की डॉक्यूमेंट में .docs होता है, .pdf होता है, इस तरह जो है वो पाइथन की फाइल्स में .ipynb यूज होता है. सो कैलकुलेटर ऐप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम जो हमारा ये कोड है और इसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी लाइन बाय लाइन. सो जब हमें सबसे पहले जो है हम जो कैलकुलेटर बनाएंगे उसमें हमें इनपुट लेना होगा दो नंबर्स का और उसके बाद एक ऑपरेटर का. उसके बाद हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे कि जो ऑपरेटर है वो कौन सा है और उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवा के प्रिंट करवाएंगे आउटपुट. सो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी है. बेसिकली इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं एंड वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक अ स्टोरेज बॉक्स.
हम उसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं. If it is a number, we do not need to put it inside the inverted commas. और अगर वो string है तो हम उसको inverted commas में डालते हैं. So we need to open this on the Chrome. On laptops, you need to open this website on Google Colab. Okay. Okay. Now, for the variables, we are going to, for variables are just like a storage box. Okay. So we need to store any kind of information that we want in the variables. So like, for example, I need to make a variable naming name. Name is the variable and I need to store any information. So I can store that in inverted पाइथन commas. का बैकअप बताओ जल्दी. But to take the input, we use the variables to store that input. बता दो. So first, we are going to declare a variable over कौन सा here. खोला है? गूगल खोला है. For example, if I want a variable of number 1. And inside the variable, I'm going to take a input. So for the input, there is a keyword of input used in Python. हाँ, We are नेट नहीं going to चल रहा. write it as it is. नेट What does this input नहीं, statement जल्दी do? जोड़ो. It takes the user's input जोड़ो. and store it inside a variable as a value. Okay. So in input, inside the bracket, whatever we write is a statement that is printed to take in the input. Like अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिख दूँ enter your number in inverted commas, तो ये पहले enter a number लिखेगा और उसके बाद ये input लेगा. तो हम यहाँ लिख देते हैं enter a number and उसके बाद हम इसमें input ले सकते हैं. So इसमें एक और चीज जो हम ऐड करेंगे whenever जब भी हम जो है वो नंबर का इनपुट लेंगे, उसमें हमें इनपुट के साथ एक इंट की स्टेटमेंट भी लगानी है. int. बेसिकली इंटीजर, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो इंटीजर्स जो है वो डेटा एक टाइप होती है नंबर्स की, जो कि पॉजिटिव और होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज और होल नंबर्स होते हैं. सो इंटीजर्स जो है वो होल नंबर होगा. और अगर हमें इनपुट में सिर्फ इंटीजर्स का इनपुट लेना है, मतलब हमें सिर्फ इंटीजर होल नंबर ही चाहिए अपने इनपुट में, तो हमें इंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी. लाइक इसके उसमें हम डिफरेंस करके देख लेते हैं. अगर हम नंबर 1 इक्वल्स टू इंट के साथ इनपुट लिखें ब्रैकेट में एंड देन अगेन वी राइट एंटर अ नंबर, तो इसमें जो है क्या फर्क होगा कि पहले जो इनपुट ये लेगा उसमें हम कोई टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं बाय चांस. सो ये रन करने के लिए हमने इस की को प्रेस किया है. Okay, Ola, you need to go after signing in, you need to go to the files option and create a new notebook. Click on the new notebook option, and now the code that I'm doing, you need to do that. Okay. So you can see in number 1, the input that we are going to write can be uh, a string. For example, I'm writing in the input my name. And in the next input, for example, if I type a number, but it is in points, like it's 3.9, or maybe it's a string value also, then let's see what does it does. See, over here you can see that for invalid literal for int. So that means that 3.9 and Simra are not the valid values for int. इंट में जो है हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आती हैं.
जो कि होल वैल्यूज होती। सो जब हम कैलकुलेटर बनाते हैं यूजुअली, तो हम उसमें पॉइंट्स अगर हमें लेने, तो हम फ्लोट की वैल्यू लगाएंगे इंट के अलावा। उसमें वो होल नंबर्स और डेसिमल्स दोनों लेगा। मगर अगर हमें सिर्फ होल नंबर्स का कैलकुलेशन करनी है, तो हम इंट लगाएंगे और इंटीजर्स यूज करेंगे। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सबको इंटीजर्स और इंटीजर्स और Yes. इनपुट समझ आ गया? किसी को कोई भी क्लियर नहीं है चीज, तो वो भी पूछ सकता है। प्लीज एवरीबडी मुझे रिप्लाई दे दें ताकि मैं आगे मूव कर लूं। आप आगे मूव कर लो। ओके, anybody else who has any problem? Should we move ahead? तो एक थम्स अप कर दें मुझे ताकि हम मूव कर सकें। ओके, सो दैट मीन्स सबको समझ आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे हमने नंबर 1 का इनपुट लिया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट अ स्टेटमेंट टू टेक द इनपुट ऑफ नंबर 2। इसमें जस्ट कुछ नहीं होगा, इसमें आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करना है, बाकी पूरी स्टेटमेंट सही रहेगी। तो आप सबका टास्क है, आई एम गिविंग यू 3 मिनट। 7:50 हो रहे, 7:53 तक सब मुझे चैट बॉक्स में जो है वो नंबर 2 वेरिएबल के लिए जो है वो लिख के भेजेंगे स्टेटमेंट्स, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर ईच। सबकी स्टेटमेंट्स हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, एंड लेट्स सी किसकी स्टेटमेंट वर्क करती है। सो यू हैव 3 मिनट्स, एंड फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट्स ट्राई करेंगे। यू नीड टू ट्राई एंड सेंड मी ऑन द चैट, ठीक है? ओके, टिल देन एवरीबडी इज डूइंग। तो फातिमा, मैं आपको एक जो है वो वापस बता देती हूँ चीजें। आपने सबसे पहले क्रोम पे जाना है, एंड वहां पे आपने गूगल कोलैब लिखना है। चैट में जो है वो लिंक है, मैं वापस सेंड कर देती हूँ। आप गूगल कोलैब की वेबसाइट पे जाएंगी, ठीक है? क्रोम पे सर्च करें गूगल कोलैब। वेलकम टू कोलैबोरेटरी की साइट पे जाके आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन साइन इन करने के बाद आपने फाइल पे आके न्यू नोटबुक क्लिक करना है। उसके बाद हम ये स्टेटमेंट्स जो है, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। मैं आपको ये स्टेटमेंट समझा देती हूँ वापस, ठीक है? इसमें आपने इनपुट लेना है यूजर से एक नंबर का। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जो है वो पहले उसको स्टोर करवाते हैं वेरिएबल में, और उसके बाद हम एक इनपुट की स्टेटमेंट यूज करके इनपुट लेते हैं। और अगर हमें इनपुट सिर्फ होल नंबर्स में चाहिए, तो हम इंटीजर की स्टेटमेंट भी ऐड करें, जो कि हमने यहाँ किया है। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल में इनपुट स्टोर करवाया, तो हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा, फिर एक इनपुट की स्टेटमेंट ली, ठीक है? इनपुट लिया और उसके साथ हमें एक उसके पीछे इनपुट लेने से पहले हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया एज इट इज, कि एंटर अ नंबर, और उसके बाद एक इनपुट का बॉक्स आ जाएगा। और ये इनपुट जो है सिर्फ होल नंबर हो, इसलिए हमने इसके अराउंड एक ब्रैकेट में जो है इसको इंट डिक्लेयर कर दिया। इस इंट से क्या होगा कि जो है वो होल नंबर ही हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है फातिमा, इज इट क्लियर? ओके, मेरे पास सिर्फ अमसल का रिप्लाई आया है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ट्राई देयर स्टेटमेंट्स? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन आस्क मी। ओके, सो
The question, Hira, the question was that you need to write a statement for the input of number 2. ठीक है, जैसे हमने नंबर 1 का इनपुट लिया था वैसे ही हमें नंबर 2 का भी इनपुट लेना था। तो आप उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिख के दें, हम सबकी स्टेटमेंट्स को ट्राई करेंगे। ओके, सो ये हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी अगर अमसिल की स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। और उससे पहले एक सेकेंड में अपना भी ऐड कर लूं। अब हम अमसिल की स्टेटमेंट देखते हैं, सी इट्स वर्किंग, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं कि ये 8.9 को ले सकती है एज इनपुट, नहीं, इसका मतलब अमसिल ने इंट की वैल्यू लगाई है, सो दैट मीन्स के सिर्फ होल नंबर्स की वैल्यू आएगी। सो गुड जॉब अमसिल, अमसिल। सो ओके, हिरा ने हमें जो है वो वैल्यू भेजी है, हिरा ने हमें एक वो भेजा है, तो हम उसको भी ट्राई करके देखते हैं। ओके, हिरा ने हमें ये भेजा है। ओके, हिरा लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। ओके, इट सेज इनकम्प्लीट इनपुट, सो दैट मीन्स कि आपका कोई ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, अब लेट्स सी इनपुट के आपने दोनों ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है, फ्लोट के बाद आपने दोनों ब्रैकेट, एक ब्रैकेट आपसे मिस हो गया है, दैट्स ओके, बट इट्स अ गुड ट्राई। लेट्स सी कि आपकी अब स्टेटमेंट वर्क करती है या नहीं। नंबर 2 के उसमें हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 5.9 आ रहा है या नहीं। ओके, सो वी कैन सी कि यहाँ पे जो है वो 5.9 एक्सेप्ट हो रहा है ऐसा इनपुट। सो अगर 5.9 एक्सेप्ट हो रहा है इट मीन्स हमने कुछ डिफरेंट किया है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने इंटीजर की जगह फ्लोट की वैल्यूज भी एक्सेप्ट करें, मतलब यहाँ होल नंबर भी आ सकते हैं और डेसिमल्स भी आ सकते हैं। सो गुड जॉब एंड हिरा और अमसिल, वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, सो अब हम मूव करते हैं, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बल्कि उससे पहले हम ऑपरेटर्स का इनपुट लेंगे। तो ऑपरेटर के इनपुट के लिए बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट होगी, इसमें हम सेम ही इनपुट इसी तरह लेंगे, मगर ऑपरेटर में जो है ना हम वेरिएबल यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं वेरिएबल का। ऑल्सो जो हिरा ने हमें कोड भेजा था, हिरा अभी हम सिर्फ जो है वो इंटीजर की वैल्यू इनपुट में लेंगे, वरना फ्लोट से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है। मगर क्लास के बाद आप लोग अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजेस करके और मुझे कोड सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे, ताकि सबको जो है वो सीखने को मिले। ठीक है, ऑपरेटर्स में हम कोई भी डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करते, ना ही इंटीजर्स ना ही फ्लोट, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो हम वर्ड्स में बताते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एंटर अ ऑपरेशन, सही है। एंड अब ये तीन इनपुट जब हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास नंबर 1 का इनपुट आएगा जो कि नंबर 1 के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, नंबर 2 का इनपुट आएगा जो नंबर 2 के वेरिएबल में स्टोर होगा, ऑपरेटर का इनपुट आएगा जो कि ऑपरेटर के वेरिएबल में स्टोर होगा। सही है दिस। इससे आगे चलते हैं, अब हम यूज करेंगे इफ एंड एल्स। ठीक है, इफ एल्स और एलिफ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है वो अ, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई चीज प्लान करते हैं, लाइक अगर मैं ट्रॉफी जीतूंगी तो मैं सेलिब्रेट करूंगी, इस तरह जो है पहले हम अगर की कंडीशन बनाते हैं, और अगर वो चीज जो है जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है,
तो हम एक स्पेसिफिक चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक अगर ये चीज होगी तो मैं ये चीज करूँ। और मगर फिर उसके बाद हम सोचते हैं द नेगेटिव साइड ऑफ इट, जो फॉल्स ब्रांच है। जैसे अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगी, मगर अगर ये हुआ तो मैं ये करूँ। सो इफ को अगर हम एक्चुअली उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इट्स अगर। तो अगर के साथ हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ के साथ हम जो कंडीशन लगाते हैं वो तब वर्क करती है जब कोई कंडीशन ट्रू, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाए। तो इफ को यूज करने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है। व्हाट इज सिंटेक्स? बेसिकली सिंटेक्स एक तरीका होता है कोड को लिखने का। सो हम जो है वो यहाँ लिखेंगे इफ, ठीक है, जो कि कीवर्ड है पाइथन का। उसके बाद हम कंडीशन को मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन है कि अगर जो ऑपरेटर में इनपुट है वो इक्वल टू है एडिशन के, मतलब अगर ऑपरेटर में के इनपुट में मैंने एडिशन लिखा है एग्जैक्टली इसी तरह ए कैपिटल और बाकी सारी चीजें स्मॉल, तो जो है क्या होगा वो हम उसके अंदर लिखेंगे। अगर ऑपरेटर जो है वो एडिशन जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है उसके बराबर है, तो जो है वो प्रिंट हो, पहले एक वेरिएबल बन जाएगा एडिशन का, उसमें इक्वल टू लगाएंगे और नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे, आउटपुट देंगे। तो इसके लिए हम प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हैं और जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और यहाँ पे हम एडिशन की वैल्यू डालते हैं। सी अब हम इसमें थोड़ी बहुत चीजें समझ लेते हैं। इफ का सिंटेक्स तो हमें समझ आ गया कि इफ हम लिखते हैं उसके बाद हम कंडीशन ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, ब्रैकेट बंद करने के बाद हम एक कोलन यूज करते हैं एंड कोलन के बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो इफ का पार्ट होगा। एक स्पेस के साथ सारी जो लाइंस आएंगी वो इफ का पार्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट जो है वो इस तरह लिख दिया होता तो ये इफ का पार्ट नहीं होती, ये ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाती, तो चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है नंबर्स तो एंटर करें और ऑपरेशन में मैंने कैपिटल ए की जगह मैंने स्मॉल ए के साथ लिख दिया, तो जो है वो कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी मगर फिर भी ये प्रिंट करता है। सही है, इसलिए हम इसको एक स्पेस के साथ लिखेंगे। नाउ इफ के सिंटेक्स के बाद हम समझ लेते हैं इन इक्वल्स टू की साइंस। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल में मैथ्स में कभी पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स और यू कैन से लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो दो चीजों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज इसके बराबर है या फिर अगर इस इस कप में जो है वो ज्यादा चाय है इस कप से, इस तरह जो है हम कंपेयर करते हैं चीजों को ग्रेटर देन लेस देन की साइन के साथ, नॉट इक्वल्स टू की साइन से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो हम यहाँ पे जो है वो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी को पता है क्यों? किसी ने सवाल नहीं पूछा कि हमने डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया? किसी को पता है हमने यहाँ डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया है? एनीबडी कैन गेस? आई नीड योर रिप्लाईज। किसी को पता है?
अगर नहीं पता तो दैट्स ओके, आप लोग बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, डबल इक्वल्स टू बेसिकली हमने इसलिए लगाया है, जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल्स के अंदर कोई भी चीज स्टोर करते हैं, तब हम एक इक्वल्स टू लगाते हैं। अगर मैं यहाँ ऑपरेटर इक्वल्स टू लगा देती तो इसका मतलब मैं ऑपरेटर की वैल्यू ये रख रही हूँ, मगर मुझे तो एक्चुअली कंपेयर करवाना है, तो इसलिए मैं डबल इक्वल्स टू लगाती हूँ कि भाई चेक करो क्या वो उसके अंदर जो वैल्यू आई है इनपुट की शेप में, क्या वो इक्वल्स टू है एडिशन के, मतलब वो बराबर है एडिशन के या नहीं। ये जब चेक हो जाएगा तब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने एक वेरिएबल बनाया स्टोरेज बॉक्स की तरह, और उसके बाद हमने उसके अंदर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमारे पास बहुत टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और परसेंटेज का साइन जो होता है जब हम डिवीजन करते हैं तो कोई एक जो नंबर बच जाता है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं वो आता है। इसी तरह रेज टू द पावर होता है। सो हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो एडिशन का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, और उसको हमने एडिशन के नंबर 1 और नंबर 2 का जो इनपुट आया था उनको हमने ऐड करवाया और एक एडिशन के वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब हमें इसको प्रिंट करवाने के लिए हम जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और जो हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं वो इसको एज ए वेरिएबल देखते हैं, और वो कंप्यूटर जो है उसको सोचता है कि इस नाम से कौन सा वेरिएबल स्टोर है और वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो एडिशन के उसमें हमारे पास वैल्यू एडिशन की है, जो भी हमारे पास एडिशन के वेरिएबल में ऐड होके आएगी वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, द एडिशन इसके बाद, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या यहाँ तक हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं 8 और 9 को ऐड कर रहा हूँ और मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ एडिशन। सो वी कैन सी द एडिशन इज 17। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सबको समझ आ गया यहाँ तक इफ एल्स की स्टेटमेंट? अगर सबको समझ आ गया दे कैन गिव अ थम्स अप, और किसी को कोई भी सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है या चैट में पूछ सकता है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट अब हमें फॉर एग्जांपल हमें इफ के बाद हमें एक और कंडीशन लगानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो, दूसरी नहीं हो तो तीसरी कंडीशन ट्रू हो, फिर चौथी कंडीशन ट्रू हो, और अगर इन चारों में से कोई भी नहीं हो तो फिर जो है वो हम कोई और काम करते हैं। सो इसी तरह हम पाइथन में भी ये काम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एडिशन की कंडीशन लगाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आंसर एडिशन है ही नहीं, हमारे पास सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम इसी तरह की वो बनाएंगे कमांड, मतलब इसी तरह की कंडीशन बनाएंगे। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे इफ की जगह हम एलिफ लिखेंगे। एलिफ का मतलब क्या होता है उर्दू में? जैसे इफ होता है अगर, वैसे ही एलिफ होता है मगर अगर ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और तो अगर वो सब्ट्रैक्शन होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे यहाँ पे नंबर 1 विल बी माइनस फ्रॉम नंबर 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे द सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी हमने सब्ट्रैक्शन रखा है तो इसलिए हम उसमें भी सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो यहाँ तक सबको एलिफ क्लियर है कि हमने एलिफ क्यों लगाया है?
इज एवरीबडी क्लियर कि हमने एलिफ क्यों यूज किया है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। ओके, so let's move on. अब now I'm giving you 4 minutes. Let's take 5 minutes. आपको जो है इसी तरह दो और एलिफ की कंडीशंस बनानी है। दो और कैसे? उन एक एक और एलिफ बनाएंगे, उसमें आप सब्ट्रैक्शन की जगह हर जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इस माइनस की साइन को स्टेरिक की साइन बना देंगे। तो उसके वापस हम इसको कॉपी करेंगे, अगेन इसको पेस्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें हम इसको डिवीजन में चेंज करेंगे। सो लेट्स लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली चीज, वो भी इसी तरह सेम तरीके से। सो हमने लगाया, यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, जहां जहां सब्ट्रैक्शन है वहां वहां पेस्ट कर देंगे हम इसको। और यहाँ पे हम इसके सिर्फ साइन चेंज करेंगे, जो कि हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का स्टेरिक साइन। इसी तरह हम डिवीजन के लिए भी सेम ही कंडीशन अप्लाई करेंगे और डिवीजन लिखेंगे एंड देन डिवीजन के लिए हम कॉपी करेंगे इसको एंड पेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीजन लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिवीजन की वैल्यू देंगे, और स्टेरिक की जगह स्लैश लगा। सही है, ये हमारी 4 ऑपरेशंस की 4 कंडीशंस बन गई। अब लास्ट कंडीशन जो हम बनाएंगे वो हम मगर की बनाएंगे, मतलब अगर ये चारों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो कोई ऐसा ही ऑपरेटर होगा जो काम या तो करता नहीं है, या तो कोई ऐसा ऑपरेशन होता ही नहीं है परफॉर्म कैलकुलेटर में। तो इसलिए जो है हम उस ऑपरेशन को इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे एल्स में। एल्स में कोई कंडीशन बची नहीं होगी, सब आखिरकार एल्स की कंडीशन लगेगी विदाउट एनी कंडीशन। एल्स की स्टेटमेंट में ऑपरेटर्स जो है हम कोई कंडीशन डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो गई तो जो है वो एल्स की कंडीशन लगेगी और उसमें प्रिंट होगा इनवैलिड। उस केस में होगा हमारे पास प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। सबको पूरा कोड क्लियर है? इफ एल्स इनपुट स्टेटमेंट एलिफ, किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो सब मुझे प्लीज, अगर सबका कोड यहाँ तक हो गया तो सब प्लीज मुझे डन लिख दें चैट में। ओके हिरा, आप टाइप कर लें एंड देन लेट मी नो। जब सब टाइप कर लें तब मुझे चैट में डन लिख दें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
ओके, सो एवरीबॉडी इज डन टिल हियर, तो सब डन लिख दें प्लीज चैट में। ओके परिवेश, यू आर डन। एनीबडी एल्स जो हो, जिसका हो गया कोड लिख के। मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एट 17 पे हम नई ऐप बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग मुझे जो है वो बता दें कि आप लोग ने कर लिया है। ओला, अंसल, बिस्मा, हिरा, आर यू गाइस डन? मेरा नहीं हुआ, मैं भी प्लीज कर चैट रहा में लिख दें so we can हूँ। move on. Okay, Ola is also done, I believe. Bisma, Hira, are you guys done? Okay, we are going to wait for 1 minute. Okay, Hira, you can type, but let me know when you're done. Okay, I'm waiting for you. And don't worry if your code is left, I will be sending the recording and this file on the group so you can practice. And you have to share your file, the screenshot of the app that you will be making on the group. Okay, so I can note down that you were doing the work. Okay, you need to complete. If the code is incomplete, you are going to be given the time till tomorrow, and you can submit it. You can complete the code, और फिर आप उसको submit कर सकते हैं group पे, और उसके हिसाब से फिर मैं check करूँगी सबका code. ओके हेरा, हमें नेक्स्ट ऐप भी बनानी है, सो हम मूव ऑन करते हैं। आप इसको रिकॉर्डिंग से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? सो वैसे मैं फाइल भी भेज दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगी स्क्रीनशॉट की। सो लेट्स मूव ऑन टू द लॉगिन ऐप, लॉगिन और साइन अप एप्लीकेशन। सो अगर आप कभी जो है वो गूगल पे गए हो, गूगल में ईमेल बनाई हो, या किसी जो है किसी वेबसाइट में साइन इन किया हो, जैसे अभी हमने किया था, तो उससे पहले हमें साइन अप करना पड़ता है। तो साइन अप में वो करेक्ट ईमेल, एक ईमेल मांगता है, एक पासवर्ड मांगता है, और उसके बाद सही ईमेल और सही पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ होता है। सो वो सही ईमेल को जो हमने ईमेल एंटर की है उससे कंपेयर करता है, और सेम गूगल जो है वो पासवर्ड के साथ भी करता है। और अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होती हैं, और दोनों सही वाली ईमेल और पासवर्ड से मैच कर रही होती हैं, तो हमें एक्सेस मिल जाता है किसी चीज का, या फिर एक्सेस नहीं मिलता। एम आई राइट? यही होता है यूजुअली साइन अप जब हम करते हैं। तो वो ही जो उसके बिहाइंड जो वर्किंग हो रही होती है,
उस वर्किंग को हम एक साइन अप ऐप से जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे साइन अप ऐप में सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं जिसमें हम करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड बताएं। देन हम दो वेरिएबल्स में दो इनपुट लेंगे, हमारी ईमेल और हमारी पासवर्ड का। देन हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम दोनों ईमेल और पासवर्ड दोनों को करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड से कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों ईमेल और पासवर्ड सही होंगे तो एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज द एक्सेस विल बी डिनाइड। सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं करेक्ट ईमेल के। आप स्पेस मत दीजिएगा दोनों करेक्ट और ईमेल के बीच में, बिकॉज गलत हो जाएगा कोड। तो या तो आप अंडरस्कोर दे दें या फिर जो है वो आप विदाउट स्पेस लिखिए। मैं विदाउट स्पेस लिख रही हूँ यहाँ पे। करेक्ट ईमेल आप कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ डाल रही हूँ simra123@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने डाल दी ईमेल करेक्ट वाली। और पासवर्ड जो है इसके लिए मैं पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड का वेरिएबल बनाऊंगी और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना सही वाला पासवर्ड लिखूं। फॉर एग्जाम्पल 12345 लिख के मैंने अपना पासवर्ड। अब मैं दो इनपुट स्टेटमेंट्स लूंगी और दोनों इनपुट में मैं एक में जो है वो ईमेल का इनपुट लूंगी और एक में पासवर्ड का इनपुट लूंगी। तो पहले हम ईमेल के इनपुट से स्टार्ट कर लेते हैं। ईमेल में हमने लगाया इनपुट एंड हमने ईमेल की स्टेटमेंट में लिखा एंटर अ ईमेल। और इसी तरह सेम वी आर गोइंग टू डू फॉर द पासवर्ड, ठीक है। इसमें भी हमने इनपुट की स्टेटमेंट लगाई और एंटर अ पासवर्ड। यहाँ तक जो है सबको क्लियर है कि कैसे हुआ है ये? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ये कैसे हुआ है? यहाँ तक सबको समझ आ गया तो प्लीज सब थम्स अप कर दें। प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। अंशल आई कांट हियर यू। आप चैट में टाइप कर दें आप अगर कहना चाह रहे हैं तो। ओला, परिवश, बिस्मा, हिरा, आप लोग मुझे बता दें कि सबको समझ आ रहा है। ओके, हिरा इज क्लियर, ओला इज क्लियर, ठीक है। बिस्मा, अंशल, थम्स अप या थम्स डाउन? ओके अंशल, आई कैन रिपीट। देखें, तो हम जो है वो साइन अप की ऐप में जब जाते हैं, साइन इन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ साइन इन किया था, यहाँ पे हमें अपना सही ईमेल और सही पासवर्ड डालना था। और अगर वो ईमेल और पासवर्ड जो हमने डाला है अगर वो सही नहीं होता तो हमें एक्सेस नहीं मिलता है, राइट? यही होता है गूगल में। किसी भी वेबसाइट में अगर हम साइन इन अपने गलत या ईमेल या पासवर्ड से करते तो हमें साइन इन नहीं होने मिलता। तो इसलिए जो है हम तो गूगल के पास जो है वो सही वाली ईमेल हमारी और सही वाला पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ होता है। और ईमेल और पासवर्ड के लिए वो एक इनपुट लेता है यूजर से कि उनका ईमेल और पासवर्ड क्या है। अगर उनका ईमेल और पासवर्ड सही वाली ईमेल और पासवर्ड से जो है वो मिल रहा होगा तो उनको एक्सेस मिल जाता है। तो इसलिए हमने ये काम करने के लिए पहले हमने सही वाली ईमेल और पासवर्ड को स्टोर करवा लिया कंप्यूटर में कि भाई ये मेरी सही ईमेल है और ये सही पासवर्ड है। अगर किसी की ईमेल और पासवर्ड यही हो तो फिर उसको एक्सेस मिलेगा। तो किसी की ईमेल जो है वो हमें इनपुट लेनी पड़ेगी सबसे पहले, राइट? हमें इनपुट लेंगे तो उसके इनपुट लेने के लिए हमने ईमेल और पासवर्ड का इनपुट लिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे ईमेल और करेक्ट ईमेल। अगर मैंने इनपुट में जो ईमेल ली है
और करेक्ट ईमेल सेम होंगे तो हमें एक्सेस मिलेगा। तो अब हम कंपैरिजन करवाएं। यहाँ तक समझ आ गया कि हमने स्टोर करवाई है करेक्ट ईमेल और पासवर्ड और इनपुट लिया है ईमेल और पासवर्ड का। अमसल, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, गुड। नाउ अब हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाने से पहले एक और चीज, लास्ट चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना कोड कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट कोड। बुलियन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ बुलियन ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी दो कंडीशंस है, या तो मैंने इफ में दो कंडीशंस लगाई, या तो मुझे दोनों सही होंगी तो मैं इफ को ट्रू करूंगी, या फिर दोनों में से कोई एक भी सही हो जाती है तो वर्क कर सकता है कोड इफ का, तो ट्रू हो जाएगी वो कंडीशन। अगर मैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बुलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं दो कंडीशंस को कंपेयर कर। अगर मैं एंड की कंडीशन लगाती हूँ तो जो दो कंडीशंस मैंने लिखी हैं इफ के साथ, तो वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इफ के अंदर जो कोड होगा वो वर्क करेगा। अगर मैं और लगा देती हूँ तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का कोड वर्क करेगा, और अगर दोनों ही गलत होंगी तो एल्स का कोड वर्क करेगा। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही इफ का कोड वर्क करेगा, वरना फिर एल्स के कोड पे चला जाए। तो हम जब साइन इन करते हैं तो हमारी ईमेल और पासवर्ड दोनों का सही होना जरूरी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इफ में भी एंड यूज करेंगे। हम इफ में लगाएंगे एक कंडीशन कि ईमेल जो हमने इनपुट में ली है क्या वो इक्वल टू है करेक्ट ईमेल के, ठीक है। और अगर ये सही है, इक्वल टू है, तो चेक करो, और जो पासवर्ड है वो इक्वल टू है करेक्ट पासवर्ड के, ठीक है। ईमेल जो है वो करेक्ट ईमेल के बराबर है और पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड के बराबर है। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो हम जो है वो प्रिंट करवाएंगे एक्सेस ग्रांटेड, और एल्स में हम लगा देंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए या दोनों ही फॉल्स हो जाए तो इन दोनों केसेस में हम एल्स लगा के और प्रिंट करवा देंगे एक्सेस डिनाई। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? इफ एल्स की कंडीशन क्लियर है सबको? ओके, Bisma Hira is clear. Okay. Ola, Ansel, are you guys clear? Okay, Ola is also clear. Amsal, are you clear? Okay, good. सबने यहाँ तक कोड कर लिया है? ये वाला कोड सबका कंप्लीट है? जिसका कोड कंप्लीट हो गया है और उनको कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। वैसे जस्ट लास्ट चीज जो मुझे कहनी है वो ये है कि आई होप आपको मजा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है पूरा कोर्स लेने का पाइथन में और आपको पूरी पाइथन सीखनी है तो आप यूटेक की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के बारे में, यूटेक के बारे में। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला हो, मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज दे कैन लीव। Okay, Ola, Bisma, Hira, do you have any questions? Okay, I'm showing the code Hira. It's over here. ये रहा कोड, आप इसको लिख सकते हैं। Okay, you're welcome, Ola. Yeah, I will be sharing the slides Hira. और मैं कोड का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, वैसे तो वो स्लाइड्स में है
मगर वो मैं शेयर भी कर दूँ। बिस्मा, do you have any questions? जी प्लीज, अब अगर आप कोड शेयर कर देंगी तो फिर मैं दोबारा उसको टाइप या अगर करके आप जो है कुछ ना। बोल रही तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर मी? I still can't hear you. Just a second. Yeah, now try to speak. Yeah, here, now you can try to speak. If you have any questions or you want to say something, you can speak. Okay, sure. Hira, I will be sharing the code and the slides so you can practice. Now, should I end the meeting? Okay. Thank you for attending the workshop. And if you have any questions, you can ask on the group or you can ask to me personally as well. Thank you.